اقتدار کی پچ پر کپتان بیٹنگ کے لیے تیار. تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں عمران خان کو ہم سے روایتی سیاست اور روایتی طرز حکمرانی کی امید نہیں رکھتے. اگر ہم نے ایسا کیا تو عوام کے غضب کا شکار ہوں گے. عمران خان کپتان ہیں اور اپنی ٹیم کو جہاں چاہیں گے کھڑا کریں گے. شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو. کہا اپوزیشن مضبوط نہیں کمزور ہے. الطاف حسین کو مسترد کرنے والی ایم کیو ایم کا احترام کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی کو اسپیکر قومی اسمبلی شہریار آفریدی یا زرتاج گل کو ڈپٹی اسپیکر شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان. سندھ کی گورنری کے لیے عمران اسماعیل کی نامزد. نیب ریفرنسز کی منتخبی سے متعلق نواز شریف کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کل تک ملتوی. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ ملزمان دفاع میں کچھ پیش نہیں کرتے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. نتیجہ بھی وہی آنے کا امکان ہے. مرکز اور پنجاب میں سیاسی حکمت عملی کی تیاری پر نون لیگ کی مجلس عاملہ کی بیٹھک. پی پی 39 سیالکوٹ سے آزاد امیدوار رانا لیاقت شہباز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگ میں شامل. کالا باغ ڈیم بہت ضروری تھا. ہو سکتا ہے کالا باغ ڈیم پر اتفاق نہ ہونے میں غیر ملکی ہاتھ ہو. نگراں وزیر اطلاعات علی ظفر کی پریس کانفرنس. کہا بھارت نے اپنے دریاؤں پر ڈیم بنا لیے, ہم نے ایسا نہیں کیا. 1 ستمبر کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا. چین میں پھنسے 214 پاکستانیوں کی 8 روز بعد وطن واپسی. شاہین ایئر لائنز کا طیارہ لاہور پہنچ گیا. دیامر میں اسکول حملوں کے بعد 40 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا. آپریشن میں پولیس کو فوج کی مدد حاصل ہے. مطلوب اشتہاری ملزمان کی گرفتاری تک آپریشن جاری رہے گا. ڈی آئی جی گوہر نفیس کی وضاحت. کہا جلائے گئے اسکولوں کی بحالی کا کام انتظامیہ نے شروع کر دیا. اور روپے کی قدر میں 18 پیسے کمی. انٹر بینک میں $124.22 پر بند. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت فروخت $124. کراچی سے ہی افسوسناک خبر دیں آپ کو, جہاں ایف بی ایریا میں گجر نالے میں صفائی کے دوران ڈمپر پھنس گیا, جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. حادثے میں 2 بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے. کراچی سے افسوسناک خبر ہے, جہاں ایف بی ایریا میں گجر نالے میں صفائی کے دوران ڈمپر پھنس گیا, جس کے نتیجے میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. حادثے میں 2 بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے ایف بی ایریا. گجر نالے میں صفائی کے دوران ڈمپر پھنس گیا ہے. اور کراچی کے بعد ذکر کریں گے گجرانوالہ کا. یہاں بھی کچرے کی یہی کہانی ہے. کوڑا کرکٹ کے درمیان رہنے والے لوگ اب گندگی سے بہت مانوس ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ اب کوڑے کی سالگرہ بھی منانے لگے ہیں. کچرے کے پاس کیک کاٹنے والے ان لوگوں کی ذہنی حالت پر شک کرنے کی ضرورت نہیں. یہ منظر گجرانوالہ کا ہے, جہاں یہ لوگ گندگی کے ڈھیر کے پاس کیک کاٹ رہے ہیں. اس اقدام کا مقصد کچرے کی صفائی نہ ہونے کے خلاف انتظامیہ سے پوچھتے ہوئے کہ 4.5 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کا حساب دیا جائے, کیونکہ وہ کرپشن کی وجہ سے پورا شہر کوڑا کنڈی بنا ہوا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اگلی بار کیک نہیں کاٹیں گے بلکہ یہی کچرا سرکاری دفاتر کے سامنے پھینک کر آئیں گے. اور کراچی کے کچرے کے معاملے پر رہنما فردوس شمیم نے میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ایم کیو ایم سے اتحاد ہماری مجبوری تھی. رہنما تحریک انصاف نعیم الحق نے فردوس شمیم نقوی کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. نعیم الحق کہتے ہیں ایم کیو ایم سے اتحاد مجبوری میں نہیں بلکہ کراچی, سندھ اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کیا. فردوس شمیم کے بیان سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں. واضح ہے کہ گزشتہ روز فردوس شمیم نے کہا تھا کہ ہم متحدہ کے پاس مجبوری میں گئے کیونکہ ہمیں ووٹ پورے کرنا تھے. ہم ان کے پاس گئے اسے کہ ہماری ایک ضرورت تھی, ایک مجبوری تھی کہ ہمیں 172 ووٹ پورے کرنے تھے. ہمارے ایم کیو ایم سے جو تعلقات ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی جو بہت عرصے سے
हमें सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, उसके बाद MQM की सीटें हैं। हम चाहते हैं और हमने जो उनसे ताउन का जो आगाज़ किया है, इसका ताल्लुक कराची के अवाम की भलाई, कराची की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए और पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए है। तो हमने उनसे पूरे कौमी सतह पर जो एग्रीमेंट किया है वो बड़ी खुशी से किया है, बड़े अजीम मकासद के लिए किया है। हम उस पर कायम हैं। फिरदौस नकवी ने एक बहुत गलत बयान दिया जिसका उनकी ज़ात से ताल्लुक़ हो सकता है, मगर पार्टी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं 1970 में अवाम ने मुस्तहकम सियासी अशराफिया को शिकस्त दी थी और आज अवाम ने दो जमाती निज़ाम को शिकस्त दी है। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि मुझ पर आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। तहरीक इंसाफ का इख्तिदार चैलेंजेस से भरपूर है। अवाम हमारा तर्ज सियासत और किरदार देखेंगे। अगर रिवायती तर्ज हुकूमत अपनाया तो अवाम हमें भी गज़ब का निशाना बना देंगे। और इमरान खान ने NA 131 में दोबारा गिनती का फैसला चैलेंज कर दिया। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ अपनाया है कप्तान ने? अदील सरफराज, आपको आवाज़ आ रही है? हमारा राब्ता इस वक्त अदील सरफराज से बहाल नहीं है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान इमरान खान ने आज जहां खिताब किया, वहीं एक और इंतखाबात से जुड़ी खबर यह है कि कर दिया है इमरान खान के वकील बाबर अवान ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को स्पीकर कौमी असम्बली, शेख रशीद को वजारत दाखिला मिलने और इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। वाज़ेह अक्सरियत के बाद तहरीक इंसाफ विफाक में हुकूमत साजी के लिए मसरूफ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक में अहम फैसले। चेयरमैन PTI इमरान खान को वज़ीर आज़म के लिए बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए शाह महमूद कुरैशी को फाइनल कर लिया है। वजारत दाखिला की अहम वजारत शेख रशीद को मिलने का इम्कान है। गवर्नर सिंध के लिए इमरान इस्माइल का नाम लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक PTI को 177 अरकान के साथ विफाक में हुकूमत बनाने के लिए फैसला कुन बरतरी हासिल में भी अपोजिशन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेशावर में बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ 9 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया। इजलास में ANP, नून लीग और दीगर जमातों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि धांधली के खिलाफ तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। सूबाई असम्बली में हलफ बर्दारी के दौरान भी भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जबकि हुकूमत का हर सतह पर घेराव किया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स ये कि इन अकाउंट्स में ब्लैक मनी, चोरी, हराम का नापाक पैसा है। ये पैसा हजम नहीं करने देंगे। बहुत हो गया, मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। इस केस के गवाहों को हिरासत किया जा रहा है। सिंध को पुलिस स्टेट बना दिया गया। अदालत ने DIG मुश्ताक महर को इंक्वायरी से अलग करते हुए IG सिंध से 2 दिन में ईमानदाराना रिपोर्ट पेश करने और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद को पीर तक पेश करने का हुक्म दिया। पैसा है, बता दें ये पैसा हजम नहीं करने देंगे। अगर साबित हो गया तो नहीं छोड़ेंगे। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान दिए। समाअत में मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान और आसिफ अली जरदारी फरियाल तारपुर के वकील फारूक H नाइक के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। वकील फारूक H नाइक ने पूछा, अगर मेरे मौकिल के खिलाफ केस साबित न हुआ तो फिर क्या होगा? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर साबित न हो सका तो आपके मौकिल को दयानतदारी का सर्टिफिकेट देंगे। फारूक H नाइक ने शिकवा किया कि उनके मौकिलों को रोजाना बुलाकर जुर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला जाता है। ये केस प्री पोल धांधली के मुतरादिफ है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रिवायत है कि हारने वाला इल्जाम लगाता है। आप अपने मौकिलों को इंक्वायरी में पेश करें।
बेगुनाह हुए तो बशीर मेमन, FIA और नैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। DG FIA ने अदालत के पूछने पर बताया कि इस केस के सारे 29 अकाउंट्स जाली हैं। सारे मामले में सिर्फ एक ही FIR दर्ज हुई है। समाअत में वक्फे के बाद जब IG सिंध अमजद जावेद सलीमी पेश हुए तो अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए उनसे इस्तिफसार किया कि IG सिंध साहब ये क्या हो रहा है। मालूम है कि इस मुतवक्के वजीर के कहने पर गवाहों को हिरासा किया जा रहा है। सिंध को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। बड़े आदमी के खिलाफ तहकीकात करने पर पुलिस गर्दी शुरू कर दी जाती है। अदालत ने हिरासा करने की रिपोर्ट 2 दिन में पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा जाता है कि चीफ जस्टिस IG सिंध मुश्ताक मेहर को इंक्वायरी से अलग करने का हुक्म देते हुए IG सिंध से ईमानदाराना रिपोर्ट पेश करने और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद को पीर तक पेश करने का हुक्म दिया। और वाटर कमीशन ने काम ना करने वाले अफसरान को बरतरफ करने और मेरिट पर नए अफसर भर्ती करने का हुक्म दे दिया। साथ ही ऑनलाइन वाटर टैंकर की सहूलत को बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। अवाम को पानी मैसर नहीं, सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा है और कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमें निशानदही करनी है तो इंतजामिया घर बैठ जाए। सरबराह सिंध हाई कोर्ट में पानी चोरी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वाटर कमीशन ने MD वाटर बोर्ड की सरजनिश की। कहा MA जिना रोड पर सेवरेज का पानी खड़ा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें बरतरफ करें और मेरिट पर नए अफसर भर्ती किए जाएं। वाटर कमीशन ने वाटर बोर्ड ऑनलाइन वाटर टैंकर की सहूलत पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। कहा कि शहरी घंटों कॉल करते हैं मगर इंतजामिया फोन वसूल नहीं करती। कमीशन ने वाटर बोर्ड के कॉल सेंटर को बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बरतानिया और दुबई में गैर मनक़ूला जायदाद बरतानिया में 250 और दुबई में 450 पाकिस्तानियों को नोटिस भिजवा दिए। टैक्स FBR ने बरतानिया और दुबई में जायदादें रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को नोटिस जारी कर दिए। जराये के मुताबिक बरतानिया में 250 और दुबई में 450 पाकिस्तानियों को नोटिस भिजवाए गए हैं। इन नोटिस में बैरून मुल्क खरीदी गई जायदादों के लिए सरमाए का जरिया पूछा गया है। FBR 1 सितंबर के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISPR का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि नौजवान पाकिस्तान को अमन और तरक्की के नए दौर की तरफ ले जाएंगे। रियासत ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का तहिया किया हुआ है। नौजवान पुरअज़्म रहें और ऐसे तमाम खतरात को शिकस्त दें। इटली के शहर में वाक़ एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर आग के शोले देखे जा सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, बताइएगा धमाका किस नौयत का है? जी, ये बलगोनिया शहर है, इटली के शुमाल में वाक़या है। यहाँ पे एयरपोर्ट के करीब दूर तक देखे जा सकते हैं और धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी गई है। तो अभी तक पुलिस ने जयवकुआ पर पहुंच गई है। वहाँ पे जो आग बुझाने का काम जारी है। एयरपोर्ट के सारे फ्लाइट कैंसिल कर दी गए हैं क्योंकि अभी ताज़ा वाक़या है, यहाँ के मुकामी वक्त 1 बजे के करीब हुआ है, तो इसलिए मजीद तफसीलात आ रही हैं। जी, जख्मियों के हवाले से कोई इत्तलात है यूनुस? जी, इटालियन मीडिया बता रहा है कि इसमें से कुछ जख्मी है लेकिन तो उसकी तादाद अभी तक नहीं बताई जा रही है। तो अभी तक ये नहीं बताया कि कितने उसमें जख्मी हुए हैं या उसमें कोई फौत भी हो चुके हैं कि नहीं। तो इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। फिल वक्त मोहम्मद यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया।